So, good morning everyone. How are you? Good morning, ma'am. Are you excited for life skill development class? Yes. So, today I am going to tell you a story. It's very interesting story based on today's topic, problem solving skills. So, the story is once there was a boy called Rohan. Rohan was very good boy, and he loves writing, he loves pasting pictures, and he was having a notebook which has so many pictures collected by him. So it was his favorite notebook. So what happened one day his friend came to him and they were playing, and after his friend left, and I don't know what happened, but after 2 days he came crying to his mother and asked, and told the mother, and the mother asked, what happened, why are you crying? So he said that, mama, my favorite notebook is missing, I'm not able to find it. So the mama said, so what happened, don't you feel like this, you go and search it in the house, I'm sure it would be there. He said, no mama, I tried too many times, 2-3 times, but it's not there. So mama said, okay, but don't cry, be positive. So mama asked him, so what are you thinking, what is in your mind? So the child said, Rohan said, mama, actually my mind is saying that my friend has actually took it. He has taken away my notebook. I am very much sure because he was there on that day when he came to my house for play. We were playing and my favorite notebook was on the table. I kept it on the table. So mama said, but don't you feel like this, don't be so negative and blame your friend. I think you must try again and search your notebook. I'm sure it must be here and there, you just search it. He said, no mama, I've tried so many times, so I don't want to. So mama then again convinced him to search. Again the child searched it and then again came crying, no mama, I'm not getting it, I know very much, it's very much clear, my friend has taken it. So mama said, okay, relax. So first what we will do is we will find out the solution to it, because you have not seen your friend taking your notebook, so how can you blame your friend? So mama convinced the boy, let us give some time and think and analyze about this problem. So next day Kantabai, who was servant in their house, cleaning the floor, पोछा लगा रही थी कांताबाई, जो हमारे घर में काम करते हैं ना. So रोहन के घर में कौन थी, कांताबाई. So कांताबाई was cleaning the floor and she said, मेम साहब भागो, ये देखो, ये बेबी की जो नोटबुक है ना यहाँ पड़ी है बेड के नीचे. It was under the bed. So the mama took it and then she called Rohan. रोहन देखो तुम्हारी नोटबुक तो बेड के नीचे है. Then mama very sweetly actually guided that boy रोहन कि बेटा ऐसे ही अननेसेसरी वी शुड नेवर थिंक नेगेटिव, क्योंकि देखो आपकी नोटबुक तो बेड के नीचे चली गई थी, हो सकता है आपसे ही मिसप्लेस हो गई हो, गलती से आपने थोड़ा सा ध्यान ना दिया हो, हो सकता है आप भूल गए हो, या हो सकता है किसी और फैमिली मेम्बर से मिसप्लेस हो गई होगी, बट नॉट योर फ्रेंड, राइट. सो ही रियलाइज्ड, यस आई वॉज थिंकिंग रॉन्गली, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा पॉजिटिव भी सोचना चाहिए था. सो दिस वे ही वॉज वेरी हैप्पी टू गॉट हिज नोटबुक. सो थ्रू दिस स्टोरी व्हाट हैव यू लर्नड? यस आतिश. मैम हमको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. वेरी गुड. यस मंत्रा. मैम हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. नहीं सोचना चाहिए. Yes, हमें कभी भी हमें ऑलवेज पॉजिटिव सोचना चाहिए. पॉजिटिव सोचना चाहिए. यस शिव. हमें भी कभी बिगड़ सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. हमें कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए. किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए. इस पार्ट लाउड बोलना. मैम हमें कभी भी किसी को भी बिना सोचे समझे उस चीज की गलती पे ब्लेम नहीं करना चाहिए. वेरी गुड. यस प्रशांत. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. यस बेटा. हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. Wow, so I've got so many answers from my lovely children, but I would like to say कि स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग आपको क्या कहती है कि हमको अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए. ऐसा होता है हमारी लाइफ में बार बार, हम बच्चे हैं,
बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने, जैसे कि रोहन के सामने क्या सिचुएशन आई, उसकी फेवरेट नोटबुक गुम गई। ऐसा आपके साथ भी होता है ना, कभी आपका ज्योमेट्री बॉक्स गुम जाता है, कभी आपकी पेंसिल मिसप्लेस हो जाती है, कभी पेन, कभी नोटबुक, और बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं, राइट। बट उस सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। तो सबसे पहले I have written few points for you. सबसे पहले define the problem. क्या करना है हमने? Define the problem. सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आई, सपोज कि मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया, तो सबसे पहले मैं एनालाइज करूंगी कि ये प्रॉब्लम जो आई है ये किस वजह से आई है, मैंने फोन कहाँ रखा था, क्या हुआ होगा। आई हैव टू एनालाइज, उसके पूरे आसपास की चीज़ों को क्या करना होता है, एनालाइज, कि फ़ोन गुम हुआ है, क्या मैंने फ़ोन ठीक से रखा था, मैं लास्ट कहाँ गई थी जब मेरे हाथ में फ़ोन था, राइट। सेकेंड पॉइंट इज गैदर इंफॉर्मेशन। अब देखो आपका फ़ोन गुम हो गया, राइट। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे करते हैं, जैसे कि आपने सबसे पूछा, मान लो अगर मेरा फोन गुम हुआ तो मैं क्या करूंगी, मैं आप सब स्टूडेंट से पूछूंगी कि आपने मेरा फोन देखा, या किसी ने मेरा फोन टेबल पे देखा, या मेरा फोन, मैं जो लोग मेरे आसपास हैं फोन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि लास्ट मेरा फोन किसने देखा तो कहां देखा, राइट। थर्ड पॉइंट इज जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशंस। यस, और इस पॉइंट में 2 पॉइंट आते हैं कि अगर प्रॉब्लम तो हो गई, उसको सोच के हमें नेगेटिव नहीं होना है, उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, रादर देन फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, लेट्स फोकस ऑन सॉल्यूशन, राइट। जैसे कि मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई, अब ठीक है, कोई चीज गुम गई तो गुम गई, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या वो हमें वापस मिल सकती है, या क्या हम एक नया प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। लेट्स से आपकी फेवरेट नोटबुक या कोई फेवरेट ज्योमेट्री बॉक्स गुम हो गया, तो क्या वो आपको वापस मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो उसके बारे में सोचिए, कैसे नहीं मिल सकता है तो सोल्यूशन क्या है, नया ले आएंगे। लेकिन उस प्रॉब्लम को सोच के वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम, वी डोंट हैव टू बी नेगेटिव, हमें बहुत परेशान नहीं रहना है, राइट। और इसमें एक चीज और होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, सो हमेशा एक प्रॉब्लम को सोचने के 2 तरीके होते हैं। जैसे कि हैव यू सीन अ कॉइन के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, 2 फेसेस होते हैं। अगर मैं एक आपको कॉइन अभी दिखाऊं तो उसके 2 फेस होते हैं ना, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, राइट। उसी तरीके से प्रॉब्लम के भी 2 पॉसिबल वेज हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम आई उसके बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे। मेरी कोई चीज चोरी हो गई तो मैं नेगेटिव ही सोचूंगा, है ना, उसने चुराई होगी, मेरे फ्रेंड ने, मेरा पेन पक्का प्रशांत ने चुराया होगा, ऐसा ही होता है ना। एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, ये मेरी नोटबुक ना पक्का तनिष्क ने ली होगी, यही कर सकता है ये काम। मैंने यहाँ बिस्किट का पैकेट रखा था, पक्का दीपांशु ने खाया होगा, है ना, यही होता है। सो वी ऑलवेज थिंक नेगेटिव, बट बेटा हमेशा इफ वी फेस एनी प्रॉब्लम, उसको 2 तरीके से सोचो कि हो सकता है ये चीज मुझसे गुम हो गई होगी, या हो सकता है मेरे से रखने में गलती हो गई होगी। सो ऑलवेज थिंक नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑल्सो। जैसे कि रोहन ने क्या सोचा, मेरी नोटबुक मेरा फ्रेंड ले गया, ठीक है, लेकिन मिली कहाँ, बेड के नीचे। सोचा क्या उसने, नेगेटिव। अगर सोचो कांता बाई एक्स्ट्रा मेहनत ना करती उस दिन सफाई में तो नोटबुक नहीं मिलती, राइट। और वो हमेशा अपने दोस्त को क्या करता, ब्लेम करता रहता। और कभी कभी हमारी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं, हमारे फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, मम्मी पापा से हम नाराज हो जाते हैं, है ना, क्या आपने हमें ये नहीं किया, देखो मेरा तो ये हो गया, राइट। सो हमको क्या बनना है, वी हैव टू थिंक नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑल्सो, राइट। जैसे कि आपने पुलिस ऑफिसर्स को देखा है, किसी घर में अगर चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, तो क्या करते हैं पुलिस ऑफिसर, सबसे पहले पूरे रूम को देखते हैं और आप घर वालों से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, चोरी हुई थी, आप कहाँ गए थे, कितने से कितने बजे तक घर से बाहर थे, आपके घर में गोल्ड कहाँ रखा था, मनी कहाँ रखा था, कौन सी अलमारी में रखा था, ये सब चीज को करते हैं। तो जब पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम हुई क्या है। यानी घर वालों से सुनते हैं ना कि चोरी हुई, कितने बजे हुई, क्या समय था,
ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, बताओ कितना पैसा ले गए, कहाँ रखा था सामान, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस पे शक है आपको, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, थोड़े से पॉसिबल सोल्यूशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब वो थीफ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, राइट, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि हमारा जो चोर है वो पकड़ा जाए, राइट। और फोर्थ है इवैल्यूएट आइडिया एंड चूज। अब यहाँ पे ठीक है, पुलिस का काम अलग है कि चोर मिल गया, अब उसके साथ क्या करना है, लेकिन अब हम चोरी वाली बात नहीं कर रहे, वी आर हेयर फॉर आर स्मॉलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लेट्स से अगर मेरा ज्योमेट्री बॉक्स गुम हो गया या मेरी कोई चीज़ गुम हो गया, मैं किसी भी प्रॉब्लम में हूँ, तो उस प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करते हैं कि ठीक है भाई, जो हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हमको क्या करना है, चूज करना है, या तो हम प्रॉब्लम में फंसे रहें या आगे बढ़ें। सो द प्रॉब्लम द सोल्यूशन टू एवरीथिंग इज वी शुड ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। प्रॉब्लम लेके बैठ के परेशान नहीं रहना है, वी शुड बी ऑलवेज हैप्पी, पॉजिटिव एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हुआ जो हुआ, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है, डिफाइन करना है, एनालाइज करना है, नेगेटिव भी सोचना है लेकिन पॉजिटिव भी सोचना है, ठीक है। उसके बाद हमें उस प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन कि क्या ये मिल सकती है, पर इस पूरे प्रोसेस में हमने किसी को भी हर्ट नहीं करना। वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच ह्यूमन बीइंग इन फ्रंट ऑफ अस। जब तक हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा तब तक हमें कोई हक नहीं बनता। वी हैव नो राइट टू से एनीथिंग रॉन्ग टू एनीबडी, बिकॉज इट एक्चुअली क्या कर देता है, आपके रिलेशनशिप खत्म कर देता है। सो किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी लाइफ को जो हमारे साथ है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर हैं, किसी को भी इस प्रोसेस में हर्ट नहीं करना, जब तक कि बाय द टाइम यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन योर हैंड, राइट। सो दीज आर द वेज हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कितने बच्चों को समझ में आया? एवरीवन। तो अगली बार अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं बोलेंगे मैम सॉरी कि मैम मेरी ये नोटबुक इसने उठा ली, मेरा पेन इसने चुरा लिया। हम क्या करेंगे, डायलॉग। और आपको पता है सबसे अच्छी की क्या होती है, अगर आपको लगता भी है कि किसी बच्चे ने अगर आपका ये पेन पेंसिल कुछ उठाया है, तो बेस्ट वे इज कि हम उस बच्चे से डायलॉग करेंगे। क्या करेंगे, डायलॉग क्या करेंगे कि आप मुझे बताओ आपने मेरी नोटबुक क्यों उठाई, क्या आपको इसमें से काम करना था, क्या आपको ये अच्छी लग रही है, क्या आप इसमें से कुछ देखना चाहते हो, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, तुमने मेरी नोटबुक कैसे उठाई, तुम थीफ हो, तुमने चोरी की है, ऐसा ही होता है। नो, वी शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और आज का जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।